Assalamu alaikum class 10th, book physics 10th class, chapter number 9 atomic and nuclear physics, lecture number 2, second half. The topics we are going to study in our chapter number 9 lecture number 2 are topics: ionizing effect, penetrating ability, half-life and its measurement, radioisotopes, uses of radioisotopes, fission reaction, nuclear fusion, safety measures. These are the topics we are going to study in our lecture number 2 are ionizing effect, penetrating ability, half-life and its measurement, radioisotopes, uses of radioisotopes, fission reaction, nuclear fusion, safety measures. These are the topics we are going to study in our lecture number 2. 10 by 10 हम की एलैबोरेटरी स्टडी करते हैं. फर्स्ट वन हमारे पास है आयोनाइजिंग इफेक्ट. Ionizing effect. The phenomena by which radiations split, by which radiations split matter into positive and negative ions is called ionization. All three kinds of radiations alpha, beta and gamma can ionize the matter. However, alpha particles have the greatest
power of ionization as compared to the beta particles. And gamma rays. It is due to positive charge and large mass of alpha particles. The ionization power of gamma rays is even less than of beta rays. Ionizing effect, the phenomena by which radiations split matter into positive and negative ions is called ionization. All three kinds of radiations, alpha, beta, gamma, can ionize the matter. However, alpha particles have the greatest power of ionization and compared to the beta particles and gamma rays. It is due to the positive charge and large mass of alpha particles, the power of ionization power of gamma rays is even less than beta rays. कि जो ionization power है gamma rays की वो less than beta rays है. कि ionizing effect क्या है? ionizing effect बाय वर्ड से ही हम इसकी डेफिनेशन लेते हैं कि आयनाइजिंग का मतलब होता है आइंस बनाना. और आइंस क्या होता है? ये ऐसी स्पीशी होती हैं जिन के ऊपर कोई ना कोई चार्ज मौजूद हो. जब इन पे कोई ना कोई चार्ज मौजूद होगा तो वो चार्ज क्या शो करेगा? ये क्या है? ये आइंस है. और आइन से ही हमने क्या करना है? उसको मैटर को सेपरेट करना है. तो यानी जो भी गैस है, जो भी मैटर हमारे पास मौजूद है, हम उसके आइंस बनाएंगे. और जैसे ही आयोनाइजिंग इफेक्ट कि आयोनाइजिंग इफेक्ट क्या था? जब गैस जो है वो आइंस में तब्दील होगी तो वो क्या करेगी? वो क्रिएट करेगी एक आयोनाइजिंग इफेक्ट. और उसी आयोनाइजिंग इफेक्ट को अगर हम डायग्राम से स्टडी करें तो डायग्राम से हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स थे, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं. ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? ये आयोनाइज करेंगे. जैसे हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज मौजूद हैं, इनके अंदर नेगेटिव चार्ज भी मौजूद हैं. नेगेटिव चार्जेस भी मौजूद हैं. तो ये क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल कॉज कर रहे हैं कि वो इंटेंस आयोनाइजिंग करें एक गैस की. और जो ही वो इंटेंस आयोनाइजिंग करेंगे एक गैस की कि वो फर्दर क्या करेंगे? वो गैस को मॉलिक्यूल्स को आइंस में चेंज करेंगे. और जैसे ही वो गैस को आइंस में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा? ये प्रोसेस इज कॉल्ड आयोनाइजिंग इफेक्ट. और ये आयोनाइजिंग इफेक्ट कहलाएगा. Next is penetrating ability. Next topic is penetrating ability. Penetrating ability.
the strength of radiations to penetrate a certain material is called penetrating power. The alpha particle has the shortest range because of its strong interacting or ionizing power. The gamma rays can penetrate a considerable thickness of concrete. It is due to their large speed and natural neutral and naturally neutral. The beta radiations strongly interacts with matter due to its charge, and has a short range as compared to gamma radiations कि जो बीटा रेडिएशंस हैं वो स्ट्रांगली इंटरेक्ट करती हैं विद मैटर, और जो ही वो स्ट्रांगली मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगी कि पेनिट्रेटिंग एबिलिटी क्या होती है. द स्ट्रेंथ ऑफ ए रेडिएशंस टू पेनिट्रेट अ सर्टन मटेरियल इज़ कॉल्ड पेनिट्रेटिंग पावर. कि जब रेडिएशंस एक मटेरियल में एंटर होंगी उन्हीं मटेरियल में एंट्रेंस को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये उसकी पेनिट्रेटिंग पावर है. और यही अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं जो सबसे शॉर्टेस्ट रेंज, द अल्फ़ा पार्टिकल हैज़ द शॉर्टेस्ट रेंज बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिंग एंड आयोनाइजिंग पावर. द इंटरेक्टिंग ऑफ आयोनाइजिंग पावर, द गामा रेज कैन पेनिट्रेट अ कंसिडरेबल थिकनेस ऑफ कंक्रीट. It is due to the thickness of their large speed and naturally neutral. कि जो पेनिट्रेटिंग एबिलिटी है, ये स्ट्रेंथ है रेडिएशंस की जब वो एक किसी मेटल में या मटेरियल में पेनिट्रेट करेंगे, और जैसे ही वो पेनिट्रेट करेंगे वो किसी सर्टेन मटेरियल में पेनिट्रेट करेंगे, और ये उनकी पेनिट्रेटिंग पावर है कहलाएगी. और इसी पावर के लिहाज से क्या कहेंगे कि अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं ये शॉर्टेस्ट रेंज मौजूद है इनकी. और इनकी शॉर्टेस्ट रेंज क्यों मौजूद है,
बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिंग और आयोनाइजिंग पावर, क्योंकि इनकी जो है वो बड़ी थोड़ी जो इंटरेक्टिंग और आयोनाइजिंग पावर है मौजूद है। इसलिए जो गैमा रेज हैं वो पेनिट्रेट करेंगे एक कंसीडरेबली थिकनेस कि बड़ी कम थिकनेस उनकी मौजूद होगी कंक्रीट की। और जैसे ये किसकी वजह से होगा, ड्यू टू देयर लार्ज स्पीड एंड नेचुरली न्यूट्रल, कि इनकी लार्ज स्पीड की वजह से और जो न्यूट्रल है ये नेचर में उसकी वजह से। फिर जो बीटा रेडिएशन होंगी वो इंटरेक्ट करेंगी मैटर के साथ, और जैसे ही वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे चार्ज के साथ, तो उनकी एक शॉर्ट रेंज होगी एज गैमा रेडिएशन। तो गैमा रेडिएशन की तरह उनकी एक शॉर्ट रेंज मौजूद होगी, और जैसे ही वो शॉर्ट रेंज मौजूद होगी हम उसको स्टडी करेंगे कि कैसे ये पास आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक डायग्राम मौजूद है, कि अगर हमारे पास ये 4 प्लेट्स मौजूद हैं, ये हमारे पास लेड मौजूद है, ये एल्युमिनियम की मौजूद है, ये पेपर मौजूद है, और यहाँ हमारे पास सोर्स मौजूद है जिसमें से रेडिएशन से निकलनी है। तो कुछ जो रेडिएशन है वो पेपर से पेनिट्रेट नहीं करेंगी, लेकिन कुछ पेनिट्रेट करके एल्युमिनियम तक पेनिट्रेट करेंगी। कि कुछ ऐसी रेडिएशन, ये देखिए हमने 3 रेज एमिट करवाई हैं, लेकिन तीनों ने क्या किया है, जो फर्स्ट रे है इसने, इसको हम अल्फ़ा रेज कहेंगे, ये बीटा रेज और ये गैमा रेज। कि अल्फ़ा रेज जो है ये पेपर से पेनिट्रेट नहीं कर सकती, क्योंकि इनकी बहुत थोड़ी जो है वो पेनिट्रेशन है, कि इनकी पावर जो है पेनिट्रेशन की वो बहुत कम है। लेकिन जो बीटा रेज है वो पेपर से पास कर गई हैं, लेकिन एल्युमिनियम से पास आउट नहीं किया। और जो ही उन्होंने एल्युमिनियम से पास आउट नहीं किया, इसी तरह कुछ जो है इन्होंने लेड से पास आउट नहीं किया। और जैसे ये पासिंग नहीं करेंगी तो इनके पैसेज ना होने की वजह से हम क्या स्टडी करेंगे कि ये क्या है, ये पार्टिकल्स हैं जो पास आउट नहीं करती, कि ये डिफरेंटली रेडिएशंस मौजूद हैं जो डिफरेंट पेनिट्रेशन पावर रखती हैं। नेक्स्ट इज alpha particles have a range of only few centimeters in air. Beta particles have a range of several hundreds meters in air. Gamma rays have range more than beta and alpha rays. कि अल्फ़ा रेज की एक रेंज जो है वो कुछ सेंटीमीटर तक मौजूद है, कि यानी थोड़ी सी रेंज जो सेंटीमीटर में ये एयर तक ट्रैवल कर सकते हैं, बिल्कुल ही थोड़ी जो है उस रेंज में। लेकिन बीटा क्या है, ये कुछ मीटर से यानी अल्फ़ा से ज़्यादा जो है ये ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन गैमा रे जो है वो इन दोनों से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। और जो ही वो इन दोनों से ज़्यादा ट्रैवल करेंगे तो इन दोनों की ट्रैवलेंस को हम स्टडी करेंगे कि ये क्या है, कि ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है। फिर उससे हम कह सकते हैं कि गैमा रेज जो है ये मोर पेनिट्रेटिंग इन नेचर है। ये था आपका टॉपिक अबाउट आयनाइजिंग इफेक्ट एंड पेनिट्रेटिंग एबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज हाफ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट। half life and its measurement. According to topic,
process of radioactivity is random and the rate of radioactive decay is proportional to the number of unstable nuclei present in this process. A constant fraction of large number of unstable radioactive nuclei decays in a certain time. So the lifetime of the unstable nuclei decays in certain half life and its measurement. The process of radioactivity and is random. The rate of radioactive decay is proportional to the number of unstable nuclei present in this process. A constant fraction of large number of unstable radioactive nuclei decays in a certain time. So the lifetime of the unstable nuclei decays in a certain time. कि रेडियोएक्टिव क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जब हम कह सकते हैं कि यहाँ रैंडम और रेडियोएक्टिव डिके जो है वो प्रोपोर्शनल होगा, और जो रेडियोएक्टिव डिके जो है वो प्रोपोर्शनल होगा उस नंबर पे कि जो अनस्टेबल यहाँ न्यूक्लियर प्रेजेंट है। क्योंकि रेडियो एक्टिव जो है वो होगी कि हमने कहा था रेडिएशन जो है वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई में से अमिट होती हैं, और जैसे ही वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई में से अमिट होती हैं तो नंबर ऑफ जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है वो इस प्रोसेस में क्या है, उनकी कांस्टेंट फ्रैक्शन है। और कांस्टेंट फ्रैक्शन होने के साथ हम क्या कहेंगे कि ये क्या कर रही हैं, ये फ्रैक्शनली जो है वो मौजूद है, और जैसे ही ये फ्रैक्शनली वहाँ मौजूद हैं तो इनकी मौजूदगी हमें क्या बताएगी कि ये अनस्टेबल जो न्यूक्लियाई हैं, कि जो हमारे जो हमारे न्यूक्लियाई हैं अनस्टेबल न्यूक्लियाई, तो उनसे क्या होगा कि वो फ्रैक्शन जो है वो रेडियो एक्टिव शो होगी, और जैसे ही वो रेडियो एक्टिव होगी उसके रेडियो एक्टिव होने से हम क्या स्टडी करेंगे कि ये जो रेडियो एक्टिव है, ये जो रेडियो एक्टिव इसमें होती है कि रेडियो एक्टिविटी जो रेडिएशंस निकल रही हैं वो रेडिएशन एक स्टेबल न्यूक्लियाई में से नहीं निकलती, और जब तक वो अनस्टेबल रहेगा फिर उसकी क्या होगी, एक सर्टेन लिमिट मौजूद है कि अगर हम कहेंगे एक रेडियो एक्टिव है तो ये तो नहीं कि वो परमानेंटली रेडिएशन निकालता है, नहीं, वो एक स्पेसिफिक लिमिट तक रेडिएशन जो है वो अमिट करता है, और जैसे ही वो रेडिएशन अमिट करेगा तो वो क्या कहलाएगा कि उसकी क्या होगी, एक हाफ लाइफ मौजूद होगी। जैसे हम एक टेबल से इसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल्स को स्टडी करें, अल्फ़ा पार्टिकल्स, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स में हम कहते हैं चार्ज इसका +2 मौजूद है, लीस्ट इसमें पेनिट्रेशन मौजूद है, और लीस्ट पेनिट्रेशन के साथ ट्रांसम्यूट्स
nucleus, A into A minus 4, Z into Z minus 2 and N into N minus 2 कि इसकी जो पेनिट्रेशंस होती हैं वो इस पर डिपेंड करती हैं कि जैसे हमने अल्फ़ा पार्टिकल्स स्टडी करें तो चार्ज उन पर +2 होता है, लेस पेनिट्रेशन होती है उनमें और वो ट्रांसम्यूट करती हैं न्यूक्लियस को। जैसे कि अगर अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो 4 होंगी, उनका एटॉमिक नंबर में 2 बाइट Z will be equal to Z minus 2 and N will be equal to N minus 2 कि वहाँ N minus 2 के मुताबिक वहाँ मौजूद होंगे। और जैसे ये सारी वहाँ मौजूद होंगी हम क्या करेंगे, इनको डिफरेंशियली स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बीटा रेज, बीटा रेज चार्ज -1, moderate, penetration, transmutes न्यूक्लियस के A इंटू A कोई डिक्रीज नहीं होगा, Z into Z plus 1 and N is equal to N minus 1 कि ट्रांसपोर्ट क्या करेगा न्यूक्लियस के बीटा रेज इन पर चार्ज -1 का मौजूद होता है, इनकी मॉडरेट पेनिट्रेशन मौजूद है, इनका A में कन्वर्ट हो रहा है, Z में हम +1 कहते हैं और जो इनका जो न्यूट्रलिटी चार्ज है उस पर -1 है कि न्यूट्रॉन पे क्या है -1 चार्ज है, किसके ऊपर चार्ज क्या है वो -1 है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास गैमा रेज, गैमा रेज, जो गैमा रेज क्या है, नो चार्ज, हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग, चेंजेस ओनली एनर्जी, किसमें से वो एनर्जी चेंज होती है, ए में कन्वर्ट होता है, जेड रहता है और एन भी एन ही रहता है, लेकिन जो चेंजेस आएंगी वो सिर्फ एनर्जी के लिहाज से आएंगी कि यानी इसका चार्ज इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता और ये सबसे ज़्यादा जो है वो पेनिट्रेटिंग है और ये चेंज सिर्फ होती है सिर्फ एनर्जी में। नेक्स्ट इज डेफिनेशन, definition of half-life, the time during which half of the unstable radioactive nuclei disintegrate is called the half-life of the sample of radioactive element। कि हाफ लाइफ क्या है, डेफिनेशन द टाइम ड्यूरिंग विच द हाफ लाइफ of the unstable radioactive nuclei disintegrate is called half-life of the sample or radioactive element। कि क्या कहलाएगी वो हाफ लाइफ कहलाएगी या उसके रेडियो एक्टिव एलिमेंट की। नेक्स्ट इज एवरी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, every radioactive element has its own characteristics, half-life
For example, radium 226 has a half life of 1620 years, which means that half of radium 26 will be converted to other elements by the end of 1620 years. Every radioactive element has its own characteristics, half-life. For example, radium 226 has a half-life of 1620 years, which means that half-life of radium 226 will be converted to other elements by the end of 1620 years. कि जैसे भी हमने हार्ड जो हाफ लाइफ स्टडी किया है कि हर रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है उसकी अपनी एक करेक्टरिस्टिक्स है, और जो ही उसकी अपनी एक करेक्टरिस्टिक्स होगी तो वो क्या करेगा, जैसे हमने फॉर एग्जांपल रेडियम की बात करते हैं कि रेडियम की जो हाफ लाइफ है वो 226 है, और जैसे ही हम रेडियम की 226 स्टडी करेंगे तो हम क्या कहेंगे ये हाफ लाइफ किसके बराबर है, इसकी 1620 ईयर्स के बराबर है, और जिसका मतलब ये सकते हैं कि 2 के हाफ लाइफ ऑफ रेडियम है। और जैसे ही उस हाफ लाइफ ऑफ रेडियम को हम स्टडी करेंगे कि 226 है ईयर्स में ये कन्वर्ट होगी दूसरे एलिमेंट्स में, और जो ही ये दूसरे एलिमेंट्स में कन्वर्ट होगी तो इसको 1620 साल लगेंगे। इसका मतलब यह है कि रेडियम जो है वो डिके करेगी अपनी 1/4 ओरिजिनल अमाउंट से, कि डिके किससे करेंगी, ये 1/4 ओरिजिनल अमाउंट से। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग द टॉपिक, इफ द हाफ लाइफ if the half-life of the radioactive element is T 1/2, then at the end of this time the number atoms in the sample will become half 1/2. After a time 2t 1/2, after second half life period the number of remaining atoms will become 1/2.1/2 is equal to 1/2 square और is equal to 1/4, कि वो 1/4 के मुताबिक होगा कि इफ़ द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज T is equal to 1/2, then the end of this time the number of atoms in the sample will become half, and after a time T 2t, after second half the life period of T will become second half, and that time will be 1/2.1/2 is equal to 1/2 square is equal to 1/2 square, कि जैसे ही उसमें 1/2 स्क्वायर होगा तो हम क्या कहेंगे वो किसके बराबर है, कि वो 1/4 वैल्यू के बराबर है,
और जैसे ही वो 1/4 वैल्यू के बराबर होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, ये क्या है, इसकी हाफ लाइफ पीरियड, ये उसका हाफ लाइफ पीरियड मौजूद है। कि जैसे ही इसमें हाफ लाइफ पीरियड मौजूद होगा तो उस हाफ लाइफ पीरियड से हम क्या कहेंगे कि ये इसकी 1/4 वैल्यू पर डिपेंड करेगा, यानी चौथा हिस्सा उसका कम हो जाएगा। और जैसे ही उसकी फोर्थ जो मोशन है वो कम होगी तो फोर्थ ख़त्म होने के बाद हम क्या कहेंगे कि ये इसकी जो है वो इसकी पावर में इसकी कमी आई है। और जैसे ही वो उसकी कमी आएगी तो उस कमी के लिहाज से हम उसको स्टडी करेंगे कि जैसे ही उसमें कोई ना कोई कमी जो है वो आई होगी। तो ये कमी कैसे आएगी, जब उसका ओरिजिनल जो न्यूक्लियाई है वो इंटीग्रेट करेगा, वो डिसइंटीग्रेट करेगा। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ remaining atoms left will be 1/2.1/2.1/2 is equal to 1/2c is equal to 1/8 and add and t half life number of atoms that remain will be t 1/2t. So the number of remaining atoms will be 1/2 dot 1/2 dot 1/2 क्यूब इज इक्वल टू 1/8। तो ये क्या होगा, उसकी हाफ लाइफ होगी उसकी, जब तक वो जो टाइम है वो 1/2t नहीं रहेगा। फिर अगर हम रिमेनिंग एटम्स को काउंट करेंगे तो रिमेनिंग एटम्स से हमें क्या ज़्यादा हुआ, रिमेनिंग एटम्स ओरिजिनल एटम्स 1/2t के n किसके बराबर होगा, n नॉट मल्टीप्लाई बाय 1/2t के n किसके बराबर होगा, n नॉट 1/t के बराबर होगा। तो द प्रोसेस of radioactivity does not depend upon the chemical combination or reactions. It is also not affected by any change in physical conditions like temperature, pressure, electric or magnetic field. The process of radioactivity does not depend upon the chemical combination or reactions. It is also affected by any change in the physical conditions like temperature, pressure, electric। कि जो रेडियोएक्टिविटी है वो सिर्फ डिपेंड करेगी केमिकल कंपोजिशन पे, और जो ही वो केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंडेंट होगी तो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा कि किसी फिज़िकल कंडीशन से, कि फिज़िकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर होगी, प्रेशर हो गया, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड होगी। और जैसे ही वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके साथ इसका कोई कंसर्न नहीं होगी। ये था आपका टॉपिक अबाउट हाफ लाइफ। Then next is radioisotopes and their uses. Radioisotopes
radioisotopes and their uses। कि रेडियो आइसोटोप है और उनके यूजेस क्या क्या है। अकॉर्डिंग टू टॉपिक न्यूक्लियाई which do not nuclei which do not emit radiations naturally are called stable nuclei। In general, most of the nuclei with atomic number 1 to 82 are stable nuclei, while the elements whose atomic number is greater than 82 are naturally unstable। They emit different types of radiations all the time, and hence continuously change from one type of element to another type। radioisotopes and their uses। कि radioisotopes क्या है? nuclei which do not emit radiations naturally are called stable nuclei। In general, most of the nuclei with atomic number 1 to 82 are the stable nuclei, while the elements whose atomic number is greater than 82 are naturally unstable। They emit radiations of different types all the time, and hence they continuously change from one type of element to another type। कि रेडियो आइसोटोप्स क्या है? कि न्यूक्लियाई जो एमिट करता रहता है रेडिएशंस, और जो ही न्यूक्लियाई जो है वो एमिट करता रहेगा रेडिएशंस, तो वहाँ क्या होगा? स्टेबल जो न्यूक्लियाई होगा वो जो है मोस्ट जो ऑफ द जनरल जो न्यूक्लियाई हैं विद एटॉमिक नंबर 1 एंड 2, कि जो ही वो एटॉमिक नंबर 1 और 82 से मुताबिक होंगी तो वो स्टेबल न्यूक्लियाई होंगी, और जैसे ही वो 82 से इंक्रीज़ करेंगे यानी ज़्यादा होंगे तो वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होंगे। और ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या करेंगे? ये रेडिएशंस कॉन्टीन्यूसली एमिट करते रहेंगे, और जब ये रेडिएशंस कॉन्टीन्यूसली एमिट करते रहेंगे तो फिर ये चेंज होते रहेंगे एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में, क्योंकि जब वो रेडिएशंस करते रहेंगे तो उनमें डिकम्पोजिशन आती जाएगी, क्योंकि अनस्टेबल न्यूक्लियाई सिर्फ रेडिएशंस एमिट करता है, और जैसे ही वो रेडिएशंस एमिट करता जाएगा उनमें डिक्रीजिंग होती जाएगी। नेक्स्ट इज द स्टेबल एंड नॉन रेडियो एक्टिव elements by bombarding the radio element by bombarded can be changed into
elements into radioactive elements with alpha particles. Such artificially produced radioactive elements are called radioactive isotopes or radioisotopes. कि ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? रेडियो आइसोटोप्स. कि द स्टेबल एंड नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स by bombarding can be changed into radioactive elements with alpha particles. Such artificially produced radioactive elements are called radioactive isotopes or are radioisotopes. They can be changed from stability कि ये एलिमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं कि जो स्टेबल एलिमेंट्स हैं जब हम उन पे अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाएंगे, जब अल्फ़ा पार्टिकल्स की रेडिएशंस वहाँ से पास करवाएंगे तो वो क्या करेंगे? वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो सच आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को, हम उनको कहेंगे ये क्या है? ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं. कि ये रेडियो आइसोटोप्स कहलाते हैं क्योंकि इनको आर्टिफिशियली हमने बनाया है. कि ये जो स्टेबल भी न्यूक्लियाई थे इनको आर्टिफिशियली हमने रेडियो एक्टिव बनाया है. इनको हम रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं. इनको रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं. कुछ रेडियो आइसोटोप्स की एग्जांपल्स हैं जस्ट लाइक कि पहली एग्जांपल है हमारे पास N प्लस सोडियम 2411 प्लस गैमा रेस कि वो क्या प्रोड्यूस करेगा? गैमा रेस. ये न्यूट्रॉन है, ये स्टेबल सोडियम न्यूक्लाइड है और ये सोडियम रेडियो आइसोटोप. कि जो ही हमने उस पर बम्बार्डमेंट करवाई तो बम्बार्डमेंट करवाने के नतीजे में उसने क्या किया? उसने रेडिएशंस एमिट की. नेक्स्ट है हीलियम 42 प्लस एल्यूमिनियम 2713 इज इक्वल टू फॉस्फोरस 1315 प्लस रेस. कि ये अल्फ़ा जो पार्टिकल्स मौजूद थे हमारे पास कि अल्फ़ा पार्टिकल्स को जब हमने एक स्टेबल एल्यूमिनियम न्यूक्लाइड पर रिएक्ट करवाया तो वहाँ से एक फॉस्फोरस रेडियो आइसोटोप मिला. कि वहाँ हमें एक फॉस्फोरस रेडियो आइसोटोप मिला. ये क्या था? ये भी है आर्टिफिशियल बम्बार्डमेंट. और ये था आपका टॉपिक अबाउट आर्टिफिशियल बम्बार्डमेंट्स. नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स. यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स. रेडियो आइसोटोप्स हम कहाँ यूज़ करते हैं? रेडियो आइसोटोप्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन मेडिसिन इंडस्ट्री agriculture for a variety of useful purposes. Following are few applications of radioisotopes in different fields. रेडियो आइसोटोप जो है ये दवाइयों की फैक्ट्री में यानी अद्वियात में हम इसको यूज़ करते हैं. उसके बाद इलाज मुआवजे में यूज़ करते हैं. उसके बाद इसका इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी कारखानों में इस्तेमाल है. ज़राइद में हम नई नई चीज़ें बनाते हैं इससे शुआओं की मदद से. सबसे पहला है ट्रेसर्स. Radioactive tracers are called chemical compounds
containing some quantity of radioisotope. They can be used to explore the metabolism. They can be used to explore the metabolism of chemical reactions inside the human body, animals and plants. कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप ट्रेसर्स जो हैं इनको हम केमिकल कंपाउंड्स कहते हैं जिनके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ रेडियो आइसोटोप मौजूद होती है. दे आर यूज टू एक्सप्लोर मेटाबॉलिज्म और केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स एंड प्लांट्स. कि इनके ज़रिए हम क्या करते हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो परफॉर्म करवाते हैं. कि यानी जो ह्यूमन बॉडी ले लें, जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनका मेटाबॉलिज्म हम फाइंड आउट करवा सकते हैं इन रेडिएशंस की मदद से. And next is radioisotopes are used as tracers in medicine, industry and agriculture. For example, radioiodine 131 readily accumulates in the thyroid gland and can be used for monitoring thyroid functioning. Radioisotopes are also used as radio tracers in medicine and industry and agriculture. Radio and iodine readily accumulates in the thyroid gland and can be used for monitoring थायराइड फंक्शनिंग. कि जो रेडियो आइसोटोप्स हैं ये हम मेडिसिन में कहाँ यूज़ करते हैं कि रेडियो जो आइसोटोप आयोडीन है 131 ये गले में गोयोटर जिसे हम जो है उर्दू में गिल्लड़ कहते हैं, यानी गले की जब स्वेलिंग हो जाती है गले में हमारा थायराइड ग्लैंड मौजूद होता है और उस थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को हम स्टडी कर सकते हैं कि आया थायराइड ग्लैंड प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है या नहीं परफॉर्म कर रहा. हम उसकी फंक्शनिंग के लिए हम जो है रेडियो 131 यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन ट्यूमर phosphorus 32 कि phosphorus 32 is used. The malignant part of the body absorbs more quantity of isotopes and this helps in tracing the affected part of body. For the diagnosis of brain tumor phosphorus 32 is used. The malignant part of the body absorbs more quantity of radioisotopes and thus helps in tracing the affected part of the
बॉडी के डायग्नोसिस के लिए यानी ब्रेन ट्यूमर के लिए हम फास्फोरस जो है 32 यूज़ करते हैं कि ये जो फास्फोरस 32 है ये जो ट्यूमर है हमारा ब्रेन ट्यूमर यानी ब्रेन कैंसर के लिए यूज़ होता है कि जो पार्ट जो इसमें कहाँ कैंसर मौजूद हो वो पार्ट क्या करता है वो अब्जॉर्ब करता है इसकी रेडिएशंस और जैसे ही वो रेडिएशन अब्जॉर्ब करता है ये हेल्प करता है इन ट्रेसिंग द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी और इसके जरिए जो अफेक्टेड पार्ट होता है बॉडी का हम उसको ठीक कर सकते हैं। Next is in industries, traces can be used to locate the wear and tear of moving parts of the machinery. ये इंडस्ट्रीज़ में हम जो है वो ट्रेसेस को देखते हैं कि मशीन में आया कहाँ जो है वो ख़राबी पेश आई है कि ट्रेसेस क्या कहते हैं ये रेडिएशन जो हैं वो हम फर्दर यूज़ करते हैं। They can be used for the location of leaks in underground pipes कि हम जो अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं अगर उनमें कहीं लीकेज हो तो वो भी रेडिएशंस के ज़रिए ही स्टडी कर सकते हैं। They can be used by introducing a suitable radioactive tracer in a pipe. The leak can be conveniently traced from higher activity in the region of crack in the pipe. कि हम क्या करेंगे ये रेडिएशन जो है जो ही हम इनको पाइप में ऐड करेंगे और जो ही जहाँ पाइप की लीकेज होगी तो वहाँ जब ज़्यादा रेडिएशन जो है अब्जॉर्ब होंगी तो हम देखेंगे कि यहाँ क्या है लीकेज मौजूद है। इन एग्रीकल्चर रेडियो फास्फोरस In agriculture, radiophosphorus 32 is used as tracer to find out how well the plants are absorbing phosphate fertilizer which are crucial to growth. कि फर्टिलाइज़र यानी ज़राअत के पेशे में हम क्या करते हैं कि फास्फोरस 32 जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ करते हैं। इससे हम ये पता लगाते हैं कि आया जो फर्टिलाइज़र यानी जो खाद हमने पौधों को डाली थी वो पौधों ने उसको जज़ब किया भी है कि नहीं, अगर किया है तो कितनी मिकदार में जो है फॉस्फेट इनमें इनके जिस्म में प्रेजेंट है कि जो प्लांट्स की बॉडी में प्रेजेंट है तो जो पौधों में प्रेजेंट है क्योंकि पौधों की नशोनुमा और बढ़ने के लिए फॉस्फेट बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम फास्फोरस 32 का ही रेडियो आइसोटोप यूज़ करके ये फाइंड आउट करते हैं कि आया इसने कितनी जो है वो जो अमाउंट है फॉस्फेट की वो अब्जॉर्ब की है। नेक्स्ट इज मेडिकल ट्रीटमेंट। रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड इन न्यूक्लियर मेडिसिन्स for curing various diseases। कि मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है कि रेडियो आइसोटोप्स आर ऑल्सो यूज्ड इन न्यूक्लियर मेडिसिन फॉर क्योरिंग वेरियस डिजीजेस। फॉर एग्जांपल रेडियो एक्टिव Cobalt 60 is used for killing cancerous tumors and cells. The radiations kill the cells of the malignant tumor in the patient। कि रेडियो आइसोटोप हैं ये जो यूज़ होते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन में ये क्योर करते हैं वेरियस डिजीज़ को। जैसे कि हमने कोबाल्ट जो 60 है ये यूज़ करते हैं हम क्योरिंग कैंसरस ट्यूमर्स। जस्ट लाइक कोबाल्ट 60 is used for curing cancerous tumors and cells। कि कोबाल्ट 60 जो है ये कैंसरियस जो सेल्स हैं और जो ट्यूमर्स हैं उनको किल करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि एकदम मेडिसिन कि ट्रीटमेंट सिर्फ हम इनको कैंसरियस जो भी सेल्स हैं उनकी ट्रीटमेंट सिर्फ रेडियोथेरापी यानी रेडिएशंस के ज़रिए करते हैं और इस थेरापी को हम रेडियोथेरापी कहते हैं। नेक्स्ट इज कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग radioactive carbon 14 is present in small amount in atmosphere।
Live plants use carbon dioxide and therefore become slightly radioactive. When a tree dies, the radiocarbon 14 present inside the plant starts decaying. Since the half-life of carbon 14 is 5730 years, कि कार्बन डेटिंग में हम कौन सा कार्बन यूज़ करते हैं, कार्बन 14, और उसकी हाफ लाइफ कितनी है, 5730 years. And the age of decay dead tree can be calculated by comparing the activity of carbon 14 in the live and dead tree. The activity of live tree remains almost constant as the carbon 14 is being replenished. Therefore, by measuring the activity in the ancient relic, scientists can estimate its age. कि कार्बन डेटिंग क्या है, कार्बन डेटिंग वो है कि हमने कार्बन के ज़रिए जो है दूसरी जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, लिविंग थिंग्स जो हैं, जैसे ऑर्गेनिज़म जो है अगर वो डेड होते हैं उनके ज़रिए भी हम कार्बन डेटिंग के ज़रिए उनकी एज डिटरमाइन करते हैं, या जो प्लांट्स या ट्रीज जो होते हैं उनके ज़रिए हम उनकी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो एक रिलेटिवली जो रेडियो एक्टिव है उसको यूज़ करके हम इसको ईयर्स को मेजर करते हैं कि आया कितनी देर में इसके जो है वो डेड हुए हैं या कितने ईयर से ये अंडरग्राउंड बरीड है। फिर कार्बन 14 जो है ये डिकेइंग भी करती है ऑर्गेनिक मैटर की, और जो ही ये ऑर्गेनिक मैटर को डिके करेगा बाय कंपेयरिंग द एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14, कि कार्बन 14 की एक्टिविटी को डिके ही कर सकता है, और डेड प्लांट जो है वो मोर रिप्लेनिश्ड होंगे, कि जितने भी हम डेड प्लांट्स इसमें यूज़ करेंगे वो सारे ही बहुत ज़्यादा रिप्लेनिश्ड होंगे, और जैसे ही वो सारे रिप्लेनिश्ड होंगे हम उनसे फर्दर इसको स्टडी करेंगे कि आया जो भी रिप्लेनिश्ड और प्लांट्स या ट्रीज होंगे हम उनकी एज मेजर कर सकते हैं, जैसे कि कार्बन जो है वो लिविंग में कितनी मौजूद है और डेड्स में कितनी मौजूद है, और जो ही हम उनको मेजर करेंगे तो उनको मेजर करने के बाद हम फर्दर इसको लिख सकते हैं। ये क्या है कि ये कार्बन डेटिंग है, ये वैल्यू उसकी कार्बन डेटिंग की है। देन नेक्स्ट इज कि जो हम ट्रीज जो हैं जो भी बरेड हो गए उनमें कार्बन की वैल्यू से हम उसको मेजर करते हैं कि कार्बन की जो वैल्यू है उसका हाफ लाइफ है 5730 ईयर्स, और जो ही हम 5730 ईयर्स को स्टडी करेंगे तो उन ईयर्स को स्टडी करने के बाद हम क्या करेंगे, इनको फर्दर उसको क्लासीफाई करेंगे। जैसे हमने फर्दर उनको क्लासीफाई करेंगे तो उनकी क्लासिफिकेशन से हम उनको फर्दर जो है वो यूज़ करेंगे, कि जैसे हमने उनको कार्बन जो उनमें मौजूद थी उस कार्बन से हम उसको लिखेंगे कि ये जो कार्बन यहाँ मौजूद है ये कितने परसेंट यहाँ मौजूद है, और जितनी कार्बन की ट्रेसेस अमाउंट वहाँ मौजूद होगी यानी उसको फिर हम कैलकुलेट करके उतने हाफ लाइफ ईयर से फिर हम उसकी ईयर्स में क्या बना सकते हैं कि ये कितने ईयर से यहाँ मौजूद है, और जो ही वो जितने ईयर से वहाँ मौजूद होगी उसकी मौजूदगी से हम ये ज़ाहिर करेंगे कि जैसे ही ये जो यहाँ मौजूद है और इसकी मौजूदगी भी बताएगी कि कितने यहाँ इसको ईयर्स जो है वो यहाँ प्रेजेंट है, उससे फिर हम हाफ लाइफ से उसकी वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू से ही हम इसको फाइंड आउट करेंगे, और जैसे ही हम उसकी वैल्यू से फाइंड आउट करेंगे तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे कि यहाँ जो वैल्यू फाइंड आउट हुई है वो कितने ईयर्स अवेलेबल है, और जितने ईयर्स वहाँ अवेलेबल होगी तो उसी से हम उतने ईयर्स उसको यूज़ करेंगे। ये क्या थी, ये है टॉपिक अबाउट है कार्बन डेटिंग। अदर रेडियो आइसोटोप्स आर आल्सो यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ जियोलॉजिकल specimens. For example, some rocks contain the unstable potassium isotope K40. This decays to the stable organ nuclide organ 40 and half life is 2.4 multiplied by 10 raised to power 8 years. The age of rock can be estimated by comparing concentrations of पोटेशियम एंड ऑर्गन, कि हम जो है रॉक्स जितने भी मौजूद हैं उनकी भी एज डिटरमाइन कर सकते हैं, वो दो क्या जो एलिमेंट्स हैं ऑर्गन और पोटेशियम की मदद से, यानी उनका जो डिकेइंग है वो एक का 2.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 8 ईयर्स है, और इस ईयर से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था टॉपिक हमारा अबाउट यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स।
Next is fission reaction. Fission reaction. Nuclear fission take place when a heavy nucleus such as uranium-235 splits or fissions into two smaller nuclei by absorbing a slow moving neutron. कि फिशन रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियर फिशन टेक प्लेस व्हेन ए हैवी न्यूक्लियस सच एज uranium-235 splits or fissions into two smaller nuclei by absorbing a slow moving neutron. कि जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है ये कब होता है? जब एक जो हैवी न्यूक्लियस जैसे कि uranium-235 जो है स्प्लिट करेगा, ये फिशनेट होगा इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई। जब वो दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में स्प्लिट होगा तो वो ऑब्जॉर्व करेगा एक स्लो मूविंग है न्यूट्रॉन को, कि जस्ट लाइक न्यूट्रॉन को जब यूरेनियम ऑब्जॉर्व करेगा तो वो ब्रोक डाउन होगा इनटू टू कंपाउंड्स में। जैसे कि हमने हमारे पास यूरेनियम U-235/92 मौजूद है, न्यूट्रॉन मौजूद है, तो वो U-236/92 और उससे वो क्रिप्टॉन और बेरॉन फॉर्म करेगा और साथ ही न्यूट्रॉन 3 फॉर्म होंगे प्लस एनर्जी फॉर्म होगी। कि क्या जो ही वो न्यूट्रॉन अब्जॉर्ब करेगा तो न्यूट्रॉन की अब्जॉर्बिंग से हम ये कहेंगे कि जैसे ही यूरेनियम ने न्यूट्रॉन अब्जॉर्ब किया तो उसमें क्या किया, उसकी जो उसका एटॉमिक मास था वो 1 से इंक्रीज़ हुआ और इंक्रीज़ होने के बाद वो क्रिप्टॉन और बेरॉन में जो है वो टूट गया। जस्ट लाइक रिएक्शन इज N10 plus uranium-235/92 is equal to uranium-236/92 into X plus Y plus न्यूट्रॉन। क्या X plus Y plus न्यूट्रॉन है ये? तो ये क्या है? ये वो केमिकल रिएक्शन है जो न्यूक्लियर फिशन में अक्कर हुआ है, कि यानी एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल में टूटा है। वेयर U-236 is an intermediate state that lasts only for a fraction of second before splitting into nuclei X and Y called fission fragments। कि जो U-236 है ये एक इंटरमीडिएट जो है वो स्टेट है दैट लास्ट ओनली फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बिफोर स्प्लिटिंग इनटू न्यूक्लियाई एंड कॉल्ड फिशन फ्रैगमेंट्स। कि वो क्या कहलाएगी? वो फिशन फ्रैगमेंट्स कहलाएगी। कि U-36 जो है ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है जो सिर्फ 2-3 मिनट के लिए फॉर्म होती है, फिर उसकी ब्रेक डाउन होकर वो दोबारा स्प्लिट हो जाता है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था वॉज ऑब्जर्व बाय इन 1939 बाय ओटो हेन एंड फ्रिट्ज स्ट्रेट्समैन। The uranium nucleus was split into 2 nearly equal fragments after absorbing a slow-moving neutron. This process is resulting in the production of typically 2 or 3 neutrons per fission event. On average, 2.47 neutrons are released per event as represented by the expression
कि जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है ये सबसे पहले जो है 1939 में जो है ऑटोमन हैन और फ्रिट्ज फ्रैगमेंट, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने किया था। और उसने कहा था कि यूरेनियम जो है वो तकरीबन दो जो मॉलिक्यूल में दो पार्ट्स में जो है स्प्लिट होते हैं और दो फ्रैगमेंट्स फॉर्म करते हैं जो ही वो न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब करेगा। और जैसे ही वो न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब करेगा उसकी अब्जॉर्बिंग पावर से वो क्या करेगा, उसको फॉर्म करेगा कि ये क्या है, एक स्लो मूविंग होगा। फिर वो प्रोडक्शन क्या करता है, वो एक न्यूट्रॉन से फर्दर 2 से 3 न्यूट्रॉन जो है वो हर सेगमेंट में फॉर्म होते हैं। यानी हर एक टिपिकल रिएक्शन में जो है ये न्यूक्लियर जो है वो यूरेनियम का वो टूट कर 2 से 3 न्यूट्रॉन्स पर रिएक्शन फॉर्म होते हैं। और जैसे ही वो रिएक्शन फॉर्म होते हैं तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन कैसे हैं, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन न्यूट्रॉन 10 प्लस यूरेनियम U235 92, बेरियम 141 56 एंड क्रिप्टॉन 92 36 प्लस 3 न्यूट्रॉन के 3 यहाँ न्यूट्रॉन भी बनेंगे जो ही वो एक यूरेनियम जो है वो एक न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब करेगा। In nuclear fission, the total mass of the products is less than the original mass of the heavy nucleus. Measurements showed that about 200 mega electron volt of energy is released in each fission event. This is the large amount of energy relative to the amount released in a chemical processes. For example, if we burn 1 ton of coal, then about 3.6 10 raised to power 10 joule of energy is released. But during the fission of 1 kg of uranium 235, about 6.7 multiplied by 10 raised to power 11 joule of energy is released. कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है, इसमें जो टोटल मास होता है प्रोडक्ट का वो ओरिजिनल मास से कम होता है जो भी वो न्यूक्लियस का हो। कि हमने मेजरमेंट कैसे की कि 2000 जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम एनर्जी बना सकते हैं हर फिशन रिएक्शन में। ये एनर्जी इस कदर इतनी ज़्यादा है क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन से फॉर्म हो रही है कि अगर हम केमिकल रिएक्शन करेंगे, अगर हम 1 टन कोयला जलाएं तो 1 टन कोयला जला के हमें कितनी एनर्जी मिलती है, वो है 3.6 मल्टीपल 10 रेज़्ड टू पावर 10 जूल कि हमें 10 रेज़्ड टू पावर 10 जूल जो है वो एनर्जी मिलेगी। और जब हमें इतनी एनर्जी मिलेगी, लेकिन जो ही हम जो फिशन रिएक्शन करवाएं 1 किलोग्राम यूरेनियम का, तो हमें जो एनर्जी मिलेगी वो 6.7 मल्टीपल 10 रेज़्ड टू पावर 11। 1 टन ऑफ कोल एनर्जी 3.6 मल्टीपल 10 रेज़्ड टू पावर 10 जूल। 1 kg of uranium 235 energy 6.7 multiple 10 raised to power 11 जूल के 10 raised to power 11 जूल उसमें से एनर्जी निकलेगी। तो ये क्या है, ये एनर्जी का वादन है कि जो कोयला है उससे ज़्यादा एनर्जी हम यूरेनियम आइसोटोप की रेडिएशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। Next is we have seen that neutrons are emitted when uranium 235 undergoes fission. These neutrons can in turn trigger other nuclei to undergo fission with the possibility of a chain reaction. कि न्यूट्रॉन जो भी यूरेनियम से निकलेंगे वो अंडरगो जाएंगे एक फिशन रिएक्शन कि यानी वो 2 मॉलिक्यूल्स में जब भी टूटेंगे तो वहाँ जो न्यूट्रॉन्स हैं वो ट्रिगर करेंगे अदर न्यूक्लियाई को, और जैसे ही वो दूसरे न्यूक्लियाई को ट्रिगर करेंगे तो न्यूक्लियाई को ट्रिगर करने के बाद क्या होगा कि वही जो न्यूट्रॉन्स हैं वो एक फिशन रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी भी बना सकते हैं कि ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है कि पॉसिबिलिटी ऑफ ए चेन रिएक्शन कि यानी चेन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है। तो फिर कैलकुलेशन क्या शो करती है कि जो चेन रिएक्शन कैलकुलेशन शो दैट इफ़ द चेन रिएक्शन इज़ नॉट कंट्रोल्ड it will proceed too rapidly and possibly result in the sudden release of an enormous amount of energy। कि जो ही जो कैलकुलेशंस होंगी चेन रिएक्शन की वो कंट्रोल नहीं होंगी तो वो क्या करेगा, वो प्रोसीड करेगा रैपिडली, और जो ही वो रैपिडली प्रोसीड करेगा तो रैपिडली प्रोसीड करने का जो अमाउंट ऑफ
पॉसिबल रिजल्ट की होगी, जो भी अमाउंट ऑफ पॉसिबल रिजल्ट होगी वो इन्हें सडन रिलीज़ होगी, कि एक सडन रिलीज़ के मुताबिक वहाँ के पॉसिबल होंगे रिजल्ट्स की वो अमाउंट फॉर्म होगी। और जो ही वो अमाउंट फॉर्म होगी तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये एक फिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट इज न्यूट्रॉन, यूरेनियम, क्रिप्टॉन, बेरियम, 3 न्यूट्रॉन्स, 3 neutrons for the uranium, further 3 neutrons, uranium, 3 neutrons, uranium and further 3 neutrons and then further uranium। कि ये जो है एक रिएक्शन में कैरी आउट रहेगा, कि जो एक न्यूट्रॉन होगा जैसे ही वो यूरेनियम के साथ अब्जॉर्ब होगा तो वो क्रिप्टॉन और बेरियम फॉर्म करेगा, और उसके नतीजे में 3 जो हैं वो न्यूट्रॉन जो हैं वो बनेंगे। और जैसे ही ये 3 न्यूट्रॉन बनेंगे तो इन 3 न्यूट्रॉन से क्या होगा, जो यूरेनियम है ये फर्दर सिंगली क्या करेंगे, यूरेनियम में अब्जॉर्ब होंगे। जो ही ये यूरेनियम में अब्जॉर्ब होंगे वो फर्दर 3 जो है वो न्यूट्रॉन्स बनाएगा, और जो ही वो फर्दर 3 न्यूट्रॉन्स बनाएगा तो उन 3 न्यूट्रॉन्स को बनाने के साथ क्या होगा कि वो फर्दर एक रिएक्शन है परफॉर्म करेंगे। कि इस तरह सोन जो है न्यूट्रॉन्स की चेन जो है वो बनती जाएगी और एनर्जी रिलीज़ होती जाएगी, और जैसे ही ये एनर्जी रिलीज़ होती जाएगी तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये एक फिशन है, रिएक्शन है। Next, this fission reaction chain can be controlled in nuclear reactors. A nuclear reactor provides energy for useful processes. In this sort of self-sustained reaction, extra neutrons liberated in fission reactions are absorbed using some material to slow down the reaction. कि जो फिशन रिएक्शन होते हैं ये कंट्रोल हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है एनर्जी फॉर सम यूज़फुल पर्पसेस, कि किसी यूज़फुल पर्पस के लिए ये एनर्जी जो है वो सप्लाई करता है। इसी तरह जो सेल्फ सस्टेन्ड रिएक्शन होते हैं उनमें एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स की लिबरेटेड होती हैं इन फिशन रिएक्शन में, कि जो ही वो एक्स्ट्रा लिबरेटेड होती है फिशन रिएक्शन में वो ऑब्जॉर्व करते हैं यूजिंग सम मटेरियल टू स्लो डाउन दी चेन रिएक्शन, कि वो स्लो डाउन करेंगे उसका चेन रिएक्शन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को अब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स को अब्जॉर्ब करेंगे, और जो ही वो न्यूट्रॉन्स को अब्जॉर्ब करेंगे तो फर्दर जो एनर्जी है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में किसी और प्रोसेस के लिए यूज़ हो जाएगी, और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो फर्दर हम अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो नेक्स्ट इज एन टेबल हाफ लाइफ ऑफ सिलेक्टेड आइसोटोप्स, कि हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ को स्टडी करते हैं कि हाइड्रोजन half life of selected isotopes, hydrogen H1O 12.3 ईयर्स, कि 12.3 ईयर्स में हाइड्रोजन की हाफ लाइफ होगी। कार्बन C14O6 5730 ईयर्स, ये उसकी हाफ लाइफ है। कोबाल्ट 14.6 30 years, iodine 131 53 8.07 days, lead Pb 212 82 10.6 hours, polonium the most radioactive PO 194/84 0.7 सेकेंड्स, कि इसकी 0.7 सेकेंड्स में ये जो है ये तकरीबन हाफ रह जाता है। कि सबसे जो कम जो हाफ लाइफ है वो पोलोनियम और लेड की है। यूरेनियम 238 92
7.1 10 raised to power, yes. Plutonium Pu 242 94 2.85, यस, ये है हाफ लाइफ ऑफ दी सिलेक्टेड आइसोटोप्स। सबसे कम जो आइसोटोप जो है वो पोलोनियम है, उसकी हाफ लाइफ है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, when two light nuclei combine to form a heavier nucleus, the process is called nuclear fusion. Nuclear fusion, when two light nuclei combine to form a heavier nucleus, the process is called nuclear fusion. The mass of the final the mass of final nucleus is always less than the masses of the original nuclei according to mass energy equation. This loss of mass converts into energy if an atom of deuterium is fused with an atom of tritium, then a helium nucleus or alpha particle is formed. Nuclear fusion, when two light nuclei combine to form a heavier nucleus, this process is called nuclear fusion। कि फ्यूज़ करेंगे, छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बनाएंगे। इसी तरह द मास ऑफ फाइनल न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द मासेस ऑफ ओरिजिनल न्यूक्लियाई। एडवांटेज, अकॉर्डिंग टू द मास एनर्जी इक्वेशन, दिस लॉस ऑफ मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी ऑफ एन एटम ऑफ deuterium is fused with an atom of tritium, then a helium nucleus or alpha particle is formed। कि जो ही जो मैस होगा न्यूक्लियस का, वो जो ओरिजिनल हमें न्यूक्लियस मिलेगा उसके मैस से कम होगा, लेकिन ये मैस एनर्जी इक्वेशन के लिहाज से क्या होगा, मैस जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। कि मैस कब एनर्जी में कन्वर्ट होगा, कि जो ही हम एक ड्यूट्रियम को फ्यूज़ करेंगे कि ट्रिटियम से, तो जो हीलियम न्यूक्लियस है वो बनेगा, साथ अल्फ़ा पार्टिकल्स फॉर्म होंगे। कि अगर हम फ्यूज़ करें कि ड्यूट्रियम मौजूद है, ट्रिटियम मौजूद है, जो ही वो फ्यूज़ करेंगे तो उनके फ्यूज़ करने से क्या होगा, हीलियम फॉर्म होगा, और हीलियम के साथ एक न्यूट्रॉन फॉर्म होने के साथ एनर्जी भी फॉर्म होगी। कि हाइड्रोजन के तीनों दो आइसोटोप्स हैं, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम, के एक में प्रोटॉन है, एक में एक ही न्यूट्रॉन है। ट्रिटियम में एक प्रोटॉन और दो
न्यूट्रॉन मौजूद हैं। जो ही वो फ्यूज़ करेंगे तो फ्यूज़ करने के बाद वो क्या फॉर्म करेंगे, हीलियम, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन हैं। इसी तरह साथ जो है एक न्यूट्रॉन फॉर्म होगा और साथ में एनर्जी भी फॉर्म होगी। ये रिएक्शन क्या होगा, ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगा। नेक्स्ट, एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन एंड स्टार्स is supposed to be the result of a fusion of hydrogen nuclei in helium nucleus with the release of energy. The temperature at the center of the sun is nearly 20 million Kelvin which makes the fusion favorable। कि जो एनर्जी आ रही है सन से और तारों से वो क्या है, वो एक हाइड्रोजन के फ्यूजन रिएक्शन की मदद से ही है, क्योंकि वो क्या करते हैं जब न्यूक्लियाई हीलियम में कन्वर्ट होते हैं तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है, और जैसे ही वो जो एनर्जी होती है तो जहाँ वो रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और जो ही रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होंगे तो वो एनर्जी भी कन्वर्ट होगी और वहाँ टेम्परेचर कितना होगा, 20 मिलियन केल्विन, जो कि क्या करेगा, फ्यूजन रिएक्शन को फेवरेबल बनाएगा। और जो ही वो फ्यूजन रिएक्शन को फेवरेबल बनाएगा तो फेवरेबल बनाने के साथ के अकॉर्डिंग टू दिस रीज़न 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए हीलियम न्यूक्लियस अलॉन्ग विद 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। कि इसी रिएक्शन की वजह से हम क्या करेंगे कि वहाँ एनर्जी जो है वो 25.7 मेगा वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि जो 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज़ करके एक हीलियम का न्यूक्लियस बनाएंगे और साथ जो है वो एनर्जी जो है वो स्केप आउट होगी। ये था आपका टॉपिक अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट, हैज़र्ड्स ऑफ रेडिएशंस एंड सेफ्टी मेजर्स। Next is hazards of radiations and safety measures. The safety measures or hazards of radiations. Although radiations are very useful in medicine, agriculture and industry, they can also cause considerable damage if not used with precautions. Radioactive nuclear materials are not widely used in nuclear power plants. Nuclear powered submarines, intercontinental ballistic missiles, some of the harmful effects of human beings due to the large doses of or prolonged small doses of radiation। कि रेडिएशन हम हर जहाज़ में हर फील्ड में अप्लाई करते हैं, लेकिन उनके फ़ायदों के साथ साथ उनके नुकसानात भी मौजूद हैं। कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं और बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह, ये ह्यूमन बींग्स पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स रखते हैं। जैसे रेडिएशन बर्न्स मेनली ड्यू टू बीटा एंड गामा रेडिएशंस may be caused redness और sores on skin। कि जो बीटा रेडिएशंस हैं या गामा रेडिएशंस हैं ये स्किन में रेडनेस बना सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेरिलिटी, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। कि ह्यूमन बींग्स में क्या हो सकती है, स्टेरिलिटी आ सकती है कि वो आगे चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, जो ही वो चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो जनरेशन आगे नहीं चलेगी। जेनेटिक म्यूटेशंस इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस। कि जेनेटिक म्यूटेशन आ सकती हैं, वरासती जो है इन म्यूटेशन जिनकी इनकी जीन्स में प्रॉब्लम हो सकती हैं। अगर जीन्स में प्रॉब्लम हो सकती हैं तो वो बेबीज जो बॉर्न होंगे उनमें बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं। इसी तरह अगर प्लांट्स की जेनेटिक में प्रॉब्लम आ सके तो प्लांट्स की भी की वेल ग्रोथ नहीं हो सकती। नेक्स्ट, ल्यूकीमिया। कैंसर ऑफ ब्लड सेल्स। कि ल्यूकीमिया हो सकता है जो कि कैंसर ऑफ ब्लड सेल है। ब्लाइंडनेस और फॉर्मेशन ऑफ कैटरैक्ट इन आई। कि आंखों की ब्लाइंडनेस यानी आंखों का अंधापन भी हो सकता है, वो भी किन की मदद से है, और रेडिएशंस की मदद से है। रेडिएशंस की मदद से है। ड्यूरिंग द न्यूक्लियर
During the nuclear accident at Chernobyl, Russia, the explosions of the nuclear reactors melted through a few meters this concrete housing. This caused a massive destruction of local community and also contaminated vegetation and livestock in the large surrounding area. Millions of dollars were lost as contaminated vegetable and livestock had to be destroyed. कि जो न्यूक्लियर एक रिएक्शन हुआ था चेरनोबिल रशिया में, उसने क्या किया था कि लाखों करोड़ों की जो जायदाद थी वो तक तबाह हो गई थी, घर वगैरह तबाह हो गए थे, साथ ही जो उनकी लाइफ स्टॉक थी यानी मवेशियाँ थे वो भी ख़राब बीमार हो गए थे, और साथ जो उनकी वेजिटेबल्स यानी सब्जियां थी वो भी वायरल हो गई थी, और सराउंडिंग एरिया की वजह से उनको लाखों करोड़ों के डॉलरों का नुकसान हुआ था. बिकॉज वी कैन नॉट डिटेक्ट रेडिएशन डायरेक्टली वी शुड स्ट्रिक्ट फॉलोली सेफली प्रिकॉशंस की हम इनको डिटेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए. The source should not be handled with tongs or forceps कि उस सोर्स को फॉर्सेप की मदद से ना पकड़ा जाए. The user should use rubber gloves and hand should be washed carefully कि आप रबड़ ग्लव्स यूज़ करें और केयरफुली वॉश करें. और रेडियोएक्टिव सोर्सेज मस्ट बी स्टोर्ड इन थिक लेड कंटेनर्स कि सबको एक थिक लेड कंटेनर रखें ताकि जो रेडियोएक्टिव फोर्सेज है कि गामा रेस अल्फ़ा बीटा रेस वो सारी रेस जो है वो लेड में अब्जॉर्ब हो जाती हैं. नेवर पॉइंट आप रेडियो एक्टिव सोर्स टूवर्ड्स अ पर्सन किसी की तरफ रेडियो एक्टिव सोर्स ना करें. फ्रीक्वेंटली विजिट द रेडिएशन सेंसिटिव एरियाज शुड बी अवॉइडेड कि विजिटेशन जो है सेंसिटिव एरियाज में वो ख़त्म होना चाहिए. ये था आपका लास्ट चैप्टर नंबर 9 लेक्चर नंबर 2 अबाउट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.